بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس بچوں، آج ہم آپ کی اردو کی بک میں سے سبق نمبر 10 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا سیکنڈ ٹاپک جا رہا ہے کائنات کا۔ تو بچوں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک اس کائنات کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی جو نعمت ہے وہ ہے علم۔ تو بچوں، کیا ہے؟ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچوں، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اس نعمت سے کیا کیا؟ نوازا ہے۔ تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بچوں، علم حاصل کرنے سے ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ علم حاصل کرنے سے ہمیں اچھے اور برے کی پہچان ہوتی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم کامیاب ہوں گے علم حاصل کرنے سے۔ تو بچوں، آج ہم ایک آپ کی اس میں سے ایک نظم پڑھیں گے جس میں ایک چھوٹا سا بچہ کیا کرتا ہے؟ علم حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ تو ریڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلے۔ تو کیا ہے ریڈنگ میں؟ سبق نمبر 10 ہے ننھا مکینک، ٹھیک ہے؟ ان کے چھوٹا مکینک، ٹھیک ہے؟ تو ریڈنگ میں کیا کہتا ہے؟ اے کاش تو سمجھتا کیسے خریدوں بستہ۔ کون کہتا ہے؟ چھوٹا بچہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں کیسے اپنا بستہ خریدوں، نہ ہوں کسی کا پیارا، نہ آنکھ کا ہوں تارا۔ تو کیا کہتا ہے کہ میں کسی کا بھی پیارا نہیں ہوں، آنکھ کا تارا کیا ہوتا ہے؟ بہت پیارا۔ آنکھ کا تارا کیا ہوتا ہے؟ بہت پیارا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہ میں کسی کا پیارا ہوں اور نہ آنکھ کا تارا، یعنی کہ بہت پیارا کسی کا نہیں ہوں۔ کیسے بلا میں ہنستا، کیسے خریدوں بستہ۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں کیسے ہنسوں، یعنی کہ کیسے میں خوش ہوں، میں بستہ کیسے خریدوں، وہ یہ خواہش ظاہر کرتا ہے۔ ہاتھوں میں میرے چھالے کپڑے ہوئے ہیں کالے۔ تو بچہ کیا کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں کیا پڑے ہوئے؟ چھالے پڑے ہوئے، میرے کپڑے بہت، یعنی کہ گندگی کی وجہ سے کیا ہوئے ہوئے؟ کالے ہوئے ہیں، یعنی کہ بہت گندے ہوئے ہوئے کام کرنے، اور ہاتھوں میں چھالے کس وجہ سے؟ کام کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں کیا پڑے ہوئے؟ چھالے پڑے ہوئے۔ آگے ہے حالت ہوئی ہے خستہ، کیسے خریدوں بستہ۔ کیا کہتا ہے کہ میری حالت جو ہے وہ خستہ، یعنی کہ پرانی، بہت، یعنی خراب سی حالت کو کہتے ہیں خستہ، خراب۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ میری حالت بہت خراب ہے، میں بستہ کیسے خریدوں۔ کوئی تو ایسا آئے مجھ کو گلے لگائے۔ کیا کہتا ہے؟ کوئی ایسا آئے تو کیا کرے؟ مجھے گلے سے لگائے۔ تو خوشیوں کا دیکھوں رستہ، کیسے خریدوں بستہ۔ پھر وہ کیا کہتا ہے کہ میں خوشیوں کا رستہ، یعنی کہ راہ، رستہ کا مطلب ہوتا ہے راہ، یعنی کہ وہ خوشیوں کی راہ دیکھ رہا ہے، کیسے خریدوں بستہ۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میں بستہ کیسے خریدوں۔ آنسو لیے کھڑا میں، ہو جاؤں نہ بڑا میں۔ کیا کہتا ہے وہ؟ کہ آنسو لیے، کہ یہی آنسو جو ہیں وہ اس کی آنکھوں میں کہ وہ بستہ نہیں خرید سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہی آنسو میری آنکھوں میں نہ رہ جائیں اور میں بڑا ہی نہ ہو جاؤں۔ آگے کیا کہتا ہے؟ موٹر کے پیچ کستا، کیسے خریدوں بستہ۔ موٹر کا مطلب ہے گاڑیاں، یعنی کہ وہ گاڑیوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہی ان کے پیچ کستا کستا میں بڑا نہ ہو جاؤں، میں اپنا بستہ کیسے خریدوں۔ جی، کیا کہتا ہے کہ میں اپنا بستہ کیسے خریدوں۔ تو بچوں، یہ چھوٹا سا جو ہے بچہ ہے، یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں اپنا بستہ کیسے خریدوں۔ وہ علم کی تلاش کر رہا ہے کہ میں کیسے علم حاصل کروں، اسے بہت شوق ہے علم حاصل کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ کیا کہتا ہے کہ میں بستہ کیسے خریدوں۔ تو یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ سائمہ کامران نے۔ کس نے لکھی ہے؟ سائمہ کامران نے۔ یہ چھوٹی سی نظم ہے، تو یہ اس کی ریڈنگ ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کی کیا کریں گے؟ ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، مشق میں سب سے پہلے آ رہے ہیں کیا؟ سوال جواب۔ کیا ہے؟ پہلا سوالات کے جواب دیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال کیا ہے؟ نظم میں ننھا مکینک کس چیز کو خریدنے کی آرزو کر رہا ہے اور کیوں، ٹھیک ہے؟ تو نظم میں اسی کوشچن سے، نظم میں ننھا مکینک بستہ، کس چیز کی جگہ کیا لکھیں گے؟ بستہ خریدنے کی آرزو کر رہا ہے اور کیوں، تو اس کی جگہ لکھیں گے
क्यों की आगे लिखेंगे क्योंकि वो स्कूल जाना चाहता है और पढ़ना चाहता है। क्योंकि वो स्कूल जाना चाहता है और पढ़ना चाहता है। ठीक है। तो सवाल नंबर 2 है, नज़म में नन्हे मैकेनिक को किन किन मुश्किलात का सामना है। तो नन्हे मैकेनिक को इन मुश्किलात का सामना है। कैसे लिखेंगे जवाब, नन्हे मैकेनिक को इन मुश्किलात का सामना है। तो ये साइड पे इसका आंसर है सवाल नंबर 2 का, नन्हे मैकेनिक के हाथों में काम की वजह से छाले पड़े हुए हैं। क्या हुआ है, नन्हे मैकेनिक के हाथों में काम की वजह से छाले पड़े हुए। पहली मुश्किल ये है। दूसरा है, वो पढ़ाई के लिए बस्ता और किताबें खरीदना चाहता है लेकिन इसके पास पैसे नहीं। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 2। अगेन सवाल नंबर 3 है, नन्हे मैकेनिक बच्चे के हाथ कैसे गंदे हुए। तो कैसे गंदे हुए थे, नन्हे मैकेनिक के बच्चे के हाथ गाड़ियां ठीक करने से गंदे हुए। कैसे की जगह लिखेंगे, गाड़ियां ठीक करने से, ये आगे लिखा हुआ है, गाड़ियां ठीक करने से गंदे हुए। ठीक है। आगे है, नन्हा मैकेनिक बच्चा किस चीज का रास्ता देखना चाहता है। तो किस चीज का रास्ता देखना चाहता है, नन्हा मैकेनिक बच्चा खुशियों का रास्ता देखना चाहता है। नन्हा मैकेनिक बच्चा खुशियों का रास्ता देखना चाहता है। ठीक है। आगे सवाल नंबर 5 है, नज़म नन्हा मैकेनिक की शायरा का नाम लिखें। तो शायरा का क्या नाम है, साइमा कामरान। नज़म नन्हा मैकेनिक की शायरा का नाम है साइमा कामरान है। शायरा का नाम साइमा कामरान है। क्या की जगह लिखेंगे, साइमा कामरान। ठीक है। आगे सवाल नंबर 2 है, इल्फा क्या है, मानी लिखें। क्या है, मानी लिखें। तो ऊपर क्या है, अल्फाज और नीचे मानी। अल्फाज लिखे हुए, हमने क्या लिखने, मानी लिखने। तो पहला क्या है, आंख का तारा। आंख का तारा क्या होता है, आंख का तारा बहुत प्यारा। ठीक है, आंख का तारा बहुत प्यारा। ठीक है। आगे दूसरा है, रास्ता है तो राह। रास्ता का क्या मतलब है, राह। रास्ता भी होता है इसका और राह भी। आगे खस्ता, पुराना भी होता है इसका मतलब और खराब भी। ठीक है। आगे मोटर तो गाड़ी। मोटर का मतलब क्या होता है, गाड़ी। ठीक। तो बच्चों आगे सवाल नंबर 3 है, जुमले बनाएं। ठीक है, क्या है ये, जुमले। ये जो अल्फाज है इसके इनके हमने जुमले बनाने हैं। तो पहला लफ्ज क्या है, बस्ता। पहला क्या है, बस्ता। इसका क्या जुमला होगा, ये मेरा बस्ता है। ठीक है। दूसरा क्या है, छाले। दूसरा क्या है, छाले। तो इसका क्या बनाएंगे, मेरे हाथों में छाले हैं। मेरे हाथों में छाले हैं। ठीक है। आगे क्या है, खुशियों। तो इसका क्या होगा, बच्चा खुशियों की राह देख रहा था। बच्चा खुशियों की राह देख रहा था। ठीक है। आगे है प्यारा, वो फूल प्यारा है। इसका क्या होगा, वो फूल प्यारा है। आगे आंसू, तो मेरी आंख में आंसू है। ठीक है, मेरी आंख में आंसू है। सवाल नंबर 4 है, नज़म में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इनके सामने टिक का निशान लगाएं। तो पहला है गाड़ी, ये भी नहीं है नज़म में। मेज भी नहीं है, तो बस्ता है। ठीक है, इस पे क्या करेंगे, टिक का निशान लगाएंगे। तो किताब भी नहीं है, हाथों पे क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। हाथों पे क्या करेंगे, टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है। तो आगे सब्ज है, ये भी नहीं है, काले, इस पे टिक का निशान लगाएंगे। कागज है, ये भी नहीं है, तो कपड़े, इस पे क्या करेंगे, टिक का निशान। तो फोन, ये भी नहीं है, तो इस पे भी नहीं है। अगर दरख्त, ये भी नहीं है, भला है नज़म में, तो क्या करेंगे, टिक का निशान लगाएंगे। आगे सवाल नंबर 5 है, दिए हुए बेतरतीब जुमलों को नज़म के मुताबिक तरतीब देकर लिखें। जैसे नज़म में लिखे हुए थे वैसे लिखने। तो क्या है, पहला बस्ता कैसे खरीदूं। तो क्या लिखेंगे, कैसे खरीदूं बस्ता। कैसे खरीदूं बस्ता, ये हम लिखेंगे। ठीक है, कैसे खरीदूं बस्ता। तो दूसरा क्या है, खुशियों का रास्ता देखूं। दूसरा क्या है, खुशियों का रास्ता देखूं। तो क्या आएगा, खुशियों का देखूं रास्ता। खुशियों का देखूं रास्ता। ये नज़म में जैसे है वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, खुशियों का देखूं
रस्ता, खुशियों का देखूं रास्ता। ठीक है, आगे है मैं बड़ा ना हो जाऊं, तो नज़म में कैसे लिखा हुआ था? हो जाऊं ना बड़ा में, हो जाऊं ना बड़ा में, ऐसे लिखा हुआ था, हो जाऊं ना बड़ा में। ठीक है, आगे क्या है? कैसे भला हंसता में, तो नज़म में कैसे लिखा हुआ है? कैसे भला में हंसता, कैसे भला में हंसता, कैसे भला, कैसे भला में हंसता, कैसे भला में हंसता। ठीक है, आगे खस्ता हुई है हालत, खस्ता हुई है हालत, तो कैसे लिखेंगे? हालत हुई है खस्ता, हालत हुई है खस्ता। ठीक है, हालत हुई है खस्ता। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, आपकी बुक में से आगे वाला पेज होगा ये। ठीक है, तो अगले पेज पे है सवाल नंबर 6 है, तस्वीरों को देखकर पेशों के नाम लिखें। ठीक है, तो देखें ये पहला क्या है? ये बनी हुई है तस्वीर, ये कौन है? ये डॉक्टर है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? डॉक्टर। ठीक है, दूसरा देखें ये क्या है? ये कौन है? ये उस्ताद है एक। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? उस्ताद। उस्तानी भी लिख सकते हैं, यानी कि उस्ताद ही है ये। ठीक है, उस्ताद, अगर लड़की है तो क्या लिखेंगे? उस्तानी लिखेंगे, उस्तानी। ठीक है, तो फिर आगे क्या है? किसान। ये देखें, बीज कौन बोता है? किसान ही बोता है ना, तो फसलें उगाता है ये। इसके नीचे क्या लिखेंगे? किसान। तो आगे सवाल नंबर 8 है, अल्फाज बनाएं जैसे खूब से खूबसूरत से खूबसूरती, ऐसे ही बनाने। तो रोशन से क्या होगा? रोशनी, रोशन से रोशनी। ठीक है, तो नीचे दूसरा है चांद, तो चांद से चांदनी, चांद से क्या बनाएंगे हम? चांदनी। आगे है पाकिस्तान से पाकिस्तानी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी। ठीक है, पाकिस्तानी। आगे है दिलकश से दिलकशी, दिलकश से क्या होगा? दिलकशी, दिलकश से दिलकशी। शायर से शायरी, शायरी। ठीक है, शायरी से, या शायरा भी हो सकता है। ठीक है, शायर से शायरा भी हो सकता है, और शायरी भी। शायरी ये ई वाले बनाने हैं तो शायरी ही होगा। ठीक है, ई वाले बनाने हैं तो क्या होगा? शायरी ही होगा। फौज से फौजी, फौज से फौजी। आगे सवाल नंबर 9 है, मुजक्कर के मोनस और मोनस के मुजक्कर लिखें। ठीक है, तो ये देखें क्या मुजक्कर है पहले, तो इनके क्या लिखने हैं? मोनस। मालिक है तो मालिक मालकन, क्या लिखेंगे इसका? मालिक का मालकन। मीम अलिफ मा और लाम और काफ और नून, मालकन। ठीक है, उस्ताद है तो उस्तानी, अलिफ सीन तेलिफ ता और नून और छुटकी उस्तानी। अगे बच्चा है तो बच्ची, बे और चे छुटके ची, बच्ची। बेटा है तो बेटी, बे ये और टे छुटकी टी, बेटी। लूमड़ी है तो क्या आएगा? लूमड़। ठीक है, ये मोनस है तो इसके क्या बनाने हैं? मुजक्कर। आगे बंदरिया तो बंदर, बेनून दाल रे बंदर। ठीक है, आगे खाला तो खालू। ठीक है, ये होगा। ममानी तो मामू, मीम अलिफ मा मीम और वाव और नून साकिन। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर पूरा मुकम्मल हो गया है। इसको याद भी करना। अल्फाज मनी अपने कॉपी पे लिखने हैं, सवाल जवाब और अल्फाज जुमले, ये चीजें आपने उर्दू ए की कॉपी पे लिखनी है, और मुजक्कर मुअन्नस जो है उर्दू बी की कॉपी पे लिखनी है। बाकी सारा काम जो बुक पर किताब का काम है वो किताब पे ही करना है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज।